वेलकम थर्ड ईयर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि लार्ज ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में क्या करती है, कलर्स की फॉर्म में प्रिंट करती है। उसको हम कहते हैं प्लॉटर। A plotter is an output device that is used to print high quality large graphics in a variety of colors. Plotters are typically used to print engineering drawing, graphics, machine parts, building designs, maps and large posters etc. ठीक है, ये इसलिए यूज़ होते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनको प्रिंट करना है, ये प्लॉटर इसलिए यूज़ हुआ जाता है। Such large printing is not possible with printers. Plotters are more expensive than printers. Plotters की टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट वन है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा है ड्रम प्लॉटर। फर्स्ट टाइप जो थी हमारे पास वो फ्लैट बेड प्लॉटर थी। वो देखें है क्या। फ्लैट बेड प्लॉटर इज अ प्लॉट टू ड्रॉ इमेजेस ऑन द पेपर। ठीक है, ये क्या है कि एक ये यूज़ होती है इमेज को ड्रॉ करने के लिए किसमें, पेपर पे। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। ठीक है, जो ड्राइंग करती है वो क्या चीज़ होती है, बेसिकली कंटेन्स पेन्स होते हैं। द पेपर इज प्लेस्ड ऑन टेबल लाइक सरफेस. The software instructs the pens to move down on the paper. The pen then moves to on the paper for creating images. Most flatbed plotters have one or more pens of different colors and widths. देख ली टेबल की तरह होता है, ठीक है, जैसे कि एक फ्लैट बेड होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये क्यों यूज़ होता है, ताकि हम लोगों ने जो भी इमेज है वो कहाँ करना है ड्रॉ, पेपर पे ड्रॉ करना है। और इसमें डिफरेंट पेन्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उनकी मदद से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर यूजेज अ रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर। ठीक है, ये देख लें सिलेंडर की तरह होता है ये। ठीक है, जैसे कि ड्रम रोटेट करता है इसी तरह ड्रम प्लॉटर भी यूज़ होता है। द ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम. द पेन्स मूव टू द लेफ्ट एंड राइट एज द ड्रम rotates. This movement creates the desired images. The advantage of drum plotter is that the length of a plot is almost unlimited. ठीक है, the roll paper can be used to draw over lengthy images. The width of the image depends on the width of the drum. It is used to print panaflexes or of large sizes. पैनाफ्लेक्सेस तो आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, वो सारे किसकी मदद से बनते हैं, ड्रम प्लॉटर की मदद से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और ये इसलिए यूज़ होती है ताकि हम लोग जो कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन अगर और बड़ी करके देखना चाहते हैं तो हम इस डिवाइस के थ्रू बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानती होंगे, ठीक है, प्रोजेक्टर्स के बारे में। Data projector is an output device that projects the output of computer screen on a large screen. The output projected by data projector can be viewed by number of people very clearly. Data projectors are used in classes to deliver lecture to many students etc. Types देख लें इसकी। फर्स्ट वन है LCD projector. LCD stand for liquid crystal display. LCD projector uses liquid crystal display technology. It is attached to the computer directly. It uses its own light source to display the information shown on the computer screen. Next है DLP projector. DLP stands for digital light processing. DLP projector uses tiny mirrors to reflect light. It produces brighter and sharper images than LCD projectors. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड. An interactive whiteboard is a touch-sensitive device that displays the images as a connected computer screen such as projector. A presenter controls the program by clicking a remote control, touching the whiteboard, drawing on
drawing on or erasing the whiteboard with special digital pen and erase or writing on a special tablet. ठीक है. The notes written on the interactive whiteboard can be saved directly on the computer. Interactive whiteboards are frequently used in classroom as a teaching tool and in meeting as a collaboration tool. ठीक है, ये देख लें इन्होंने क्या है, ये कोई मार्कर वगैरह या कोई चीज़ हाथ में नहीं पकड़ी हुई. ठीक है, ये जहाँ जहाँ टच, समझ लें ये टच स्क्रीन है. ठीक है, हम लोगों ने जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो ड्रॉ करेंगे वाइट बोर्ड पे. ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ हम बनाते चले जाएंगे वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाती है. हमारा टॉपिक ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस. ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस आर द कंपोनेंट दैट प्रोड्यूस वॉइस, म्यूजिक एंड अदर audible sounds. The most commonly used audio output devices are speakers, headphones and earbuds etc. ठीक है, ऑडियो सुननी है ना. ठीक है, तो ऑडियो क्या होती है, वॉइस फॉर्म में होती है. स्पीकर, हेडफोन्स, हेडसेट एंड एयरबड्स. स्पीकर क्या होती है, ये इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस. इट कनेक्ट्स टू अ sound card on the motherboard. In the system unit, it produces soft copy output in the form of voice. It provides audio output for the computer, games, music, video clips, and other applications. The speakers are some desktop computers are built directly into the monitor. Portable computers and mobile devices typically have speakers integrated into the device. Speakers are available in different shapes and sizes. हमारे पास हेडफोन. ठीक है, हेडफोन can be used instead of speakers so that other people are not disturbed at places such as public library. The headphones are placed outside of the ear. Headset is a headphone with a built-in microphone. It is often used when making telephone calls or participating in web conferences using computer. Wireless headsets are commonly used with mobile phone. नेक्स्ट है ईयरबड्स. ईयरबड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हम लोग समझ लें ब्लूटूथ के थ्रू जो हम लोगों ने माइक्रोफोन्स लिए हुए होते हैं. ठीक है, ईयरबड्स आर ऑफन यूज्ड विद पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेस एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस. द ईयरबड्स आर प्लेस्ड इनसाइड द ईयर. बोथ हेडफोन्स एंड ईयरबड्स यूजुअली इंक्लूड नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ साउंड फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, हेडफोन्स और ईयरबड्स क्या है, दोनों ही लोगों को शोर से बचाने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं ताकि बाकी सारे लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो. टॉपिक है हमारे पास कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Many devices combine both input and output device. This combination saves space and also helps in specialization application. Some important combined input-output devices are as follows. Facsimile fax machine. ठीक है, फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या है, ये डाटा को ट्रांसमिट भी करती है और डॉक्यूमेंट्स को रिसीव भी करती है. किसके थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू. Facsimile fax machine transmits and receives document over telephone lines. The document may contain टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, एंड हैंड रिटन कंटेंट या हाथ से लिखा हुआ कोई भी मटेरियल हो सकता है. फैक्स मशीन एट सेंडिंग साइट स्कैन द डॉक्यूमेंट, इट कन्वर्ट्स इट इन डिजिटल फॉर्म एंड देन ट्रांसमिट. ठीक है, द फैक्स मशीन एट रिसीविंग साइट कन्वर्ट्स दिस डिजिटल फॉर्म इनटू its original form and prints it. Types देखिए इसकी कितनी है. Dedicated fax machine. It is a normal fax machine. It can send information to an other fax machine. क्यों यूज़ होती है, ताकि हम लोगों ने कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचानी है, दूसरी फैक्स मशीन तक पहुंचानी है. ठीक है, डेडिकेटेड का यही मतलब होता है कि उसको आगे लेके चलना. ठीक है, इट कैन आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर फैक्स मशीन. Next है fax modem. It is a circuit board inside the system unit. It can send and receive information to and from another computer. It can also send information to a fax machine. Next है हमारे पास internet telephone. Internet telephone is also called
telephony or internet telephony, it uses the internet to connect two or more people via टेलीफोन। ठीक है, ये क्यों यूज़ होती है? ताकि हम लोग दो लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को टेलीफोन पर कनेक्ट कर सकें थ्रू इंटरनेट। द कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंटरनेट टेलीफोन इंटरनेट अ स्पेशल सर्विस प्रोवाइडर अ साउंड कार्ड और special software. The user can make long distance telephone calls very inexpensively. Internet telephone connections are rapidly becoming popular। ठीक है, ये चीज़ तो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हुई भी है, सब इससे फेमिलियर भी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। ठीक है, मल्टी फंक्शन का मतलब होता है बहुत सारे फंक्शन एक ही चीज़ या एक ही डिवाइस परफॉर्म कर रही है। मल्टीफंक्शन डिवाइस इज डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर की भी है, स्कैनर भी हो, कॉपी मशीन भी और फैक्स मशीन भी। दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड मल्टीफंक्शन पेरिफेरल्स MFPs or all-in-one devices. These devices are commonly used in offices to provide all facilities। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसको पिक्चर में। An advantage of using multifunction device is that it occupies less space and is less expensive than using multiple machines. A disadvantage is that the quality and functionality is not as good as separate single-purpose devices. Some example of multifunction devices are HP OfficeJet and Canon Multipass। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जो कि इनपुट और आउटपुट परफॉर्म्स करती हैं। टर्मिनल्स इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स इनपुट एंड आउटपुट। इट कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड अ वीडियो कार्ड एक्सेट्रा। इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। डंब टर्मिनल, it has no processing power and cannot function as dependent devices। ठीक है, ये इसमें क्या है, प्रोसेसिंग की पावर भी नहीं है और कोई भी फंक्शन ये खुद बहुत परफॉर्म नहीं कर सकता। इट कैन इंटर एंड ट्रांसमिट डाटा टू कंप्यूटर टू विच इज कनेक्टेड। डंब टर्मिनल इज नॉर्मली कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर। Host computer performs the processing and then sends the output back to dumb terminal. Such terminal may be used by airline reservation clerk to access mainframe computer for light information. Next हमारे पास intelligent terminal. Intelligent terminal also contains memory and processor to perform some functions independent of the host computer। ठीक है, it is also called programmable terminal. It does not have its own storage capacity. Intelligent terminals are often used in local area network in an office. The user share applications, software and data stored on a server. Third one है special purpose terminal. It performs specific task. Special जो task होते हैं ये वो perform करता है। It is designed for use in a particular industry। ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। 2 एग्जांपल्स आर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। पॉइंट ऑफ सेल्स POS terminal, it records purchases when the computer purchases a product or service. It is used in grocery stores etc। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में जो चीज़ें जो यूज़ होती हैं उसको हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। इट इज़ अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग मशीन। इट कनेक्ट्स टू होस्ट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। द यूज़र inserts a plastic bank card with a magnetic strip into the ATM and enters the password. The password is also called personal identification number, जिसको हम पिन कहते हैं। It is used to access the bank account। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।